Good morning, children. Welcome to the maths class. Now, as we have already started with the measurement of the length, children, in early days, they had no standard means of measuring. Kabhi foot say, as you can see in the picture, in this they used to use the foot. Then this hand span. ऐसा हाथ ऐसा अगर आप खोलेंगे तो उसका hand span बोलते थे. This is how they used to measure, and with the arms they used to measure. Okay. And then slowly what happened, they got a different measurements, so they started using a, like, here, see this footstep, this they, and but they did not get an actual measurement with this hand span arm, because सबका हाथ अलग अलग size होता है ना. So when a small one person used to we used to one person used to measure, so he used to get a different measurement. When same thing, same, suppose for example they are measuring a wall, ठीक है. वन पर्सन इज मेजरिंग विद द फुट स्टेप. अब सबका पैर फीट जो अलग अलग होता है, सम आर हैविंग स्मॉल, सम आर हैविंग लॉन्ग, सो दे यूज टू गेट अ डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स बाय यूजिंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, है ना. सो देन they started using the tape beta. Okay, so these are the tapes which were used. Now also you must be seeing the tailor using the tape for the measurement, and even the carpenter they uses for measuring, है ना. So then we started using the standard unit. स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब जिससे एग्जैक्ट आपको एक्चुअल मेजरमेंट मिलता है. ओके, सो मिलीमीटर जो सबसे छोटा, सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा, एंड द मीटर. दीज आर द थ्री मेन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ बेटा. ओके, मिलीमीटर जो बहुत छोटा है, सेंटीमीटर लाइक फॉर एग्जांपल ब्रश, दैट डे इन डेमो आई हैव शोड यू ब्रश, पेंसिल, है ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स. नोटबुक आपको मेजर करना है, थिकनेस ऑफ द बुक प्रेशर मेजर करना है, सो दैट सेंटीमीटर वी विल यूज फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट. व्हेन बिग बिग लेंथ करना है, लॉन्ग हाइट, सो देन वी यूज द मीटर. Okay, now we'll begin with the worksheet, children. Now, as you know, in the worksheet beta, in the question number 1 they have given that look at the picture and answer the following question. Now see, observe carefully beta. I'll little zoom this one. As you can see, there is a pencil, two pencils are there, and they have used the paper clips. Paper clips होता है ना, आपने देखा होगा. देखो, look at the first pencil. They have used a small paper clips for measuring. So how many paper clips we need to measure that pencil? How many are there? 1, 2. Let me take the pen, then I'll tell you. See, 1, 2, 3, 4, 5. 5 paper clips is the measuring of the first pencil. 5 clips. Okay. Second one, if you observe carefully, same size of the pencil, but the size of the paper clip also is also big beta. But यहाँ पे सिर्फ 3 है बटा, 1, 2 and 3. 3 paper clips. तो ऐसा थोड़ी ना मेजरमेंट होता है. सेम पेंसिल बट इट शुड हैव अ सेम मेजरमेंट ना. दैट इज वाई ना, दिस इज जस्ट वी वॉन्ट टू टेल यू दैट स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्यों यूज किया गया, वाई वी आर यूजिंग इट. सो नाउ वी आर गोइंग टू start with the fill in the blanks, and then more clarity will be there. Now see, I'm going to read the C1. We got 2 dash measurement for the same object. अब देखो, 2 pencils था बेटा just now. We have used a different size of the paper clip, तो different measurement मिला हमको. Did we get the same? 5 मिला आपको? नहीं, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 3 मिला, दो different. So the answer is different. We got 2 different measurements. ठीक है, फॉर द सेम साइज ऑफ द पेंसिल. नेक्स्ट वन, D1. नाउ वी यूज डैश साइज पेपर क्लिप टू मेजर इट. कैसा था साइज पेपर? 2 डिफरेंट था. देखो, यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे बिग. सो वी विल राइट 2. वी यूज द 2 डिफरेंट साइज पेपर क्लिप टू मेजर इट. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ टू अवॉइड दिस, अब आप अभी ऐसा नहीं चलेगा. वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट मेजरमेंट. Now to avoid this, we use dash measurement for measuring the things. We use standard measurement. We use standard measurement, okay, to for measuring the things. अब वो दो कौन सा measurement है बेटा? Next, we use dash to measure the shorter length. For shorter length, we use C for centi, M for meter. तो short form में centimeter को cm लिखते हैं. Okay. Next, we use dash to measure the longer length. For longer length बेटा हम use करते हैं meter. And the short form of meter is m. ठीक है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ओ आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू. आपने रूलर देखा है, यू हैव सीन द रूलर बेटा. एंड रूलर में आप देखना कॉर्नर में व्हेन यू सी द रूलर दिस सेंटीमीटर इज रिटन देयर एंड ज़ीरो से स्टार्ट होता है, देन 1 2 3 लाइक दिस इट गोज ऑन मेजरमेंट. सो उसके ऊपर में दे आर मेजरिंग. सो रीड द मेजरमेंट एंड राइट इन द गिवन बॉक्स. ये मेजरमेंट देखो कितना गया यहाँ से लेके, इट हैज़ गॉन टिल 4, है ना. सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. Here it is, one more. This is a ribbon on the ruler. आप देखो यहाँ से रखा, it is gone till 9. So this is 9 centimeter. Okay. Now, measure the following object using the ruler. अब आपको रूलर रख के इसके ऑब्जेक्ट को मेजर करना है. If you keep a ruler on the brush, it will give you, I think so. See, I am keeping a ruler on the अंडर द ब्रश. आपको रूलर रखना है ब्रश के ऊपर में, ठीक है बेटा. सो it's giving me, you have to see children, you have to use the following object using the ruler. दी एक्चुअल ब्रश आप लेना, उसका मेजरमेंट लिखना. आप शार्पनर लेना बेटा, देन उसका मेजरमेंट रूलर के ऊपर में रख के लिखेंगे, ठीक है. नाउ सी आई टेल यू हाउ टू कीप इट. नाउ सपोज दिस इज अ रूलर. Okay, now this is starting with 0, ठीक है. Then it comes 1, then it comes 2, then it comes 3, then it comes 4, and there is a marking of 5 5 10 markings in between बेटा, ठीक है. सो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट देखना है. आपको ब्रश के नीचे में, नाउ सी आई ड्रॉ दैट रूलर अंडर द ब्रश. आई टेल यू हाउ टू कीप. ओके, इफ आई कीप दिस, आप ना रूलर को ऐसा रखना है इसके नीचे में. यू कीप द रूलर लाइक दिस. फिर देखना यहाँ पे कितना मेजरमेंट आया, दैट यू राइट. देन अगेन यू कीप द रूलर अंडर द ब्रश. इसके नीचे एग्जैक्टली आप रखना. फिर देखना कितना मेजरमेंट है. सिमिलरली आप कोम के लिए भी ऐसा रूलर उसके नीचे रखेंगे एंड देन देखना ये कहाँ तक जाता है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स यू आर गेटिंग. सो दिस यू हैव टू डू. सिमिलरली आपको रूलर लेना है. यू हैव टू टेक द रूलर, ठीक है. रूलर से यू हैव सपोज फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव ड्रॉन द रूलर 3 सेंटीमीटर. सो लुक हियर आई एम ड्रॉइंग हियर एरो. यहाँ पे देखो. सो टीचर यहाँ पे एग्जैक्टली डॉट करेगी, यहाँ डॉट करेंगे सॉरी का टीचर. 3 जहाँ पे रहेगा आप यहाँ डॉट करेंगे और फिर रूलर से आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और वहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है. अब 5 सेंटीमीटर का कैसे लेंगे बेटा. आई ड्रॉ अनदर वन, ठीक है. नाउ विल बिगिन विथ 0 से, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ठीक है. ऐसा रूलर आप स्ट्रेट रूलर रखना. कीप द रूलर स्ट्रेट. देन वेयर इट इज़ 0 वहाँ डॉट डालना. वेयर इट इज़ 5 यू मेक अ डॉट एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर यू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन एंड राइट 5 सेंटीमीटर, ठीक है. I hope this is clear. Once again, I will explain you. You keep a ruler. Suppose if it is 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका स्टार्टिंग का 0 है बेटा. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, सपोज दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कीप द रूलर स्ट्रेट. रूलर बिना शेक किए हुए, बिना मूव किए स्ट्रेट रूलर रखेंगे. डोंट शेक द रूलर. वंस इट इज़ सेट बिल्कुल स्ट्रेट, आप 0 के ऊपर में यहाँ डॉट डालना. 4 सेंटीमीटर के जहाँ 4 है वहाँ डॉट डालेंगे एंड देन डॉट को स्ट्रेट लाइन में आप ज्वाइन करेंगे एंड देन यू विल राइट 4 सेंटीमीटर. ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिस इन योर रफ नोटबुक बेटा, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू बेटा. गॉड ब्लेस यू.